Good morning, dear students. Today, we are going to discuss a new chapter from civics book, that is urban livelihood. Dear student, you know very well that if we see the different people around us, they are engaged in the various types of works or different types of the activities to earn their livelihood. These activity grouped in three categories. These are our primary activity, secondary activity, and the tertiary activity. Primary activities. Primary activities, in these activities, we undertake such types of the activities that uh, that we just derive from the natural resources. And in the primary activities, mainly we consider the agricultural activity or farming activities. Second is our tertiary activity. The raw material, when we convert the raw material into the finished good, that is our secondary activity. And in other words, we can say that this is related to this is related to industry or the manufacturing. And third, when we supply these finished product to the different people, that is the tertiary activity. Tertiary activity is related to the service classes. So there are three types of the work, three types of the activity in which people are involved. These are our primary activity, secondary activity, and the tertiary activity. Primary activity is related to the agricultural activity. Secondary activity is related to the manufacturing or industry, and tertiary activity related to the services like the doctor, engineer, teacher, banking, insurance, etc. So in previous chapter, we discussed about the rural livelihood. In the rural livelihood, we discuss the lifestyle, or we discuss the different sources of earning the livelihood in the village area. So mainly the villagers, they are involved in the primary activity. Urban villages, urban dwellers, they are involved in the secondary and the tertiary activity. So today we are going to discuss what are the different types of the tasks or work in which urban people are involved to earn their livelihood. In this chapter, we will discuss about the different type of work people do in the city as their livelihood. We will also discuss about the permanent employment. What are the benefits of permanent employment? We will also discuss about the employment on the casual basis. Except this, we will also discuss about the self-employed livelihood and employment given by the other in urban area. And we will also discuss the employment at call center in the cities. So mainly in this chapter, we are going to discuss about the different types of the work that has been done by the urban people to earn their livelihood. So let's start this chapter. There are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. Big cities like Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata, etc. have more than a million people living and working there. Actually, Chennai, Mumbai, Delhi, and Kolkata, these are the metropolitan city. What are metropolitan city? In which the population is more than 1 million people. That are the metropolitan city. So in the big cities, the people, they are engaged in the different types of work. Some people in cities have secure permanent employment, while others do not get equal opportunities and depend on availability of temporary एम्प्लॉयमेंट. जैसा कि आपका जो बड़े शहर होते हैं, पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क. तो उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जॉब सिक्योर होती है, सुरक्षित होती है, और उनके पास परमानेंट वर्क होता है, जबकि दूसरे लोगों को इस प्रकार के अवसर नहीं मिल पाते हैं
तो उनका कार्य जो होता है टेम्पोरेरी होता है, यानी कि उनको टेम्पोरेरी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। स्टिल अदर आर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना बिजनेस सेल्फ बिजनेस जो है करते हैं, यानी कि अपने आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परमानेंट जॉब, temporary job or casual job, and the self-employed. So let's start from the permanent job. Permanent employment. There are many workers in the city who work in offices, factories, and government departments where they are employed as regular and permanent worker. शहरों में आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनका कार्य जो है रेगुलर होता है, नियमित होता है, एंड परमानेंट वर्कर, और वो स्थायी वर्कर होते हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, वो उसी ऑफिस में, उसी फैक्ट्री में नियमित रूप से जाते हैं। देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, और उनका जो वर्क होता है वो क्लियरली आइडेंटिफाई होता है, यानी कि वो निश्चित होता है, डिटरमाइन होता है कि उनको क्या करना है। यानी कि वहां पे पता होता है कि अगर एक फैक्ट्री में एक वर्कर जा रहा है तो उस वर्कर का क्या काम है, वो एज ए लेबरर जा रहा है या एज ए मैकेनिक जा रहा है या एज ए ऑपरेटर जा रहा है या एज ए सुपरवाइजर जा रहा है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है, उनका वर्क जो है आइडेंटिफाई होता है। यानी कि उनको पता होता है कि उनको जो है कौन सा कार्य करना होता है, यानी कि उनको जो है एक स्पेसिफाई एरिया में जो है काम करना होता है। दे एक्सपेक्ट देयर जॉब टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है एक लंबे समय तक उस प्रकार के कार्य को करेंगे। अब उनको जो है एक ही ऑफिस में काम करना होता है। दे डू द स्पेसिफिक वर्क, दे डू द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वर्क, सो दे गेट ए रेगुलर सैलरी। तो उनको जो है एक रेगुलर सैलरी मिलती है, नियमित रूप से उनको वेतन मिलता है। इन केस ऑफ इलनेस, अगर वो बीमार हो जाते हैं, द एम्प्लॉय गेट्स मेडिकल लीव, तो उनको मेडिकल लीव मिलती है, एंड द सैलरी इज नॉट डिडक्टेड। यानी कि मेडिकल लीव में क्या होता है, अगर वो बीमार होती हैं, वो एक दिन के लिए बीमार हुए या एक वीक के लिए बीमार हुए या एक महीने के लिए बीमार हुए, तो उनकी सैलरी डिडक्ट नहीं होती है, उनकी सैलरी नहीं काटी जाती है, उनको पूरा वेतन मिलता है, फुल सैलरी उनको मिलती है। दे आर नॉट आस्क्ड टू लीव इफ एम्प्लॉयर डज नॉट हैव मच वर्क, और अगर उस फैक्ट्री में या उस ऑफिस में या उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी महीने ज्यादा कार्य नहीं है तो उनको ये नहीं कहा जाता कि आप इस कार्य को छोड़ दें। उनको तब भी जो है ऑफिस में बुलाया जाता है, फैक्ट्रीज में बुलाया जाता है, और वो रेगुलर जो है कार्य वहां पे करते हैं। दे आर परमानेंट वर्कर विद द कंपनी, क्योंकि वो कंपनी के जो है परमानेंट वर्कर्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। इस सारी स्थिति को हम जो है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर आपका काम चलता है, थ्रू आउट द ईयर यू गेट द सैलरी, तो आपका पूरा साल जो है सैलरी भी मिलती है। यू ऑल्सो अर्न द मेडिकल लीव, आप बीमार हो जाते हैं तो आपको मेडिकल लीव का प्रोविजन भी आपका परमानेंट वर्क में होता है। सो this is the permanent work. So what are the advantages of the permanent work? permanent work के क्या advantages होते हैं? The very first is saving for old age. A part of the salary is kept in a fund with the government. जब आप रेगुलर जॉब करते हैं तो जो सैलरी आपकी मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ अंश आप जो है एक फंड के रूप में, अपने एक जमा पूंजी के रूप में, जमा राशि के रूप में जमा कर देते हैं, जिसको आप पीएफ के नाम से जानते हैं, प्रोविजनल फंड। यानी कि जब आप अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं, व्हेन एम्प्लॉइज रिटायर फ्रॉम देयर जॉब, दे गेट दिस मनी अलोंग विद इंटरेस्ट अर्न ऑन इट। यानी कि जब आप रिटायर हो जाते हैं, जब आपकी जॉब नहीं रहती है आफ्टर 60 ईयर, तो आप क्या करते हैं, आपने जो ये पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा जो जमा किया है, ये पैसा आपको रिटायरमेंट के समय पर वापस मिल जाता है विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। टू लीव ए सिक्योर ओल्ड एज, ताकि आपका जो बुढ़ापे की जो अवस्था है, जो ओल्ड एज आपकी है, वो आप सुरक्षित तरीके से आप उसको व्यतीत कर सकें। तो सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि इसमें जो है ओल्ड एज के लिए आपकी सेविंग्स हो जाती हैं। सेकंड, हॉलीडेज। संडेज एंड नेशनल holidays along with the annual leave are the holidays enjoyed by them.
यानी कि जो रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं उनको संडे की लीव भी मिलती है प्लस नेशनल हॉलीडे, जैसे कि आपका इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है आपकी, होली का त्यौहार है आपका, दीपावली का त्यौहार है आपका, जन्माष्टमी का त्यौहार आपका, यानी कि जितनी भी गजटेड हॉलीडे होती हैं सरकार के द्वारा जो मान्य हॉलीडे होती हैं, द हॉलीडेज दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, all these holiday received by the permanent worker, वो परमानेंट वर्कर को वो सारी हॉलीडे जो है मिलती हैं और सभी जो है उनका आनंद उठाते हैं। थर्ड इज मेडिकल फैसिलिटी फॉर द फैमिली। द कंपनी पेज मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू ए सर्टेन अमाउंट फॉर इट्स एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेंबर्स। जो आपका रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है या गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, अगर आप बीमार हो जाते हैं या आपकी फैमिली से कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो एक सर्टेन अमाउंट जो फिक्स होता है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट आपको जो है पे करती है। यानी कि गवर्नमेंट जो है दुख के समय में भी बीमारी के समय में भी आपके साथ रहती है। सो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज अवर एम्प्लॉयमेंट ऑन अ कैजुअल बेसिस, जिसको आप कहते हैं टेम्पोरेरी जॉब। टेम्पोरेरी जॉब क्या होती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट जॉब, हैव ए लुक हियर। द गारमेंट बिजनेस, गारमेंट बिजनेस क्या होता है आपका, रेडीमेड क्लॉथ बिजनेस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी। यानी कि शहरों में आजकल जो गारमेंट का जो बिजनेस है, कपड़ों का जो व्यापार है, वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो इससे बहुत से लोगों को जो है शहरों में काम मिल जाता है। प्रीफरेंस फॉर रेडीमेड ड्रेसेस ओवर स्टिच वन इज वन ऑफ द रीजन फॉर द ग्रोइंग बिजनेस ऑफ गारमेंट फैक्ट्रीज एंड रेडीमेड गारमेंट शोरूम। आजकल आपने देखा होगा कि जो रेडीमेड ड्रेसेस है, हम जो है कपड़े जो है टेलर से स्टिच नहीं कराते हैं, नहीं सिलवाते, हम रेडीमेड क्लॉथ को पहनना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से गारमेंट फैक्ट्रीज जो है या गारमेंट जो बिजनेस है वो शहरों में आपका अधिक जो है आपका लोकप्रिय हुआ है, अधिक आपका स्प्रेड हुआ है। और उसकी वजह से आपके डिफरेंट जो रेडीमेड क्लॉथ शोरूम्स हैं वो भी बड़े बड़े शहरों में आपके पाए जाते हैं। रेडीमेड क्लॉथ फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रोड। रेडीमेड जो क्लॉथ भारत में जो बनाए जाते हैं वो इंडिया के लिए भी बनाए जाते हैं और दूसरे अब्रोड फॉरेन जो कंट्रीज होते हैं, विदेश जो होते हैं, उनके लिए भी बनाए जाते हैं। आर प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड अट्रैक्टिव डिस्प्ले इन शोरूम। और उनको जो है जो प्रमोट किया जाता है वो एडवर्टाइजिंग के द्वारा या अच्छे अच्छे शोरूम के द्वारा जो है डिस्प्ले के द्वारा एडवर्टाइजिंग के द्वारा उसको जो है आपका जो है प्रमोट किया जाता है। रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्रीज हैव स्मॉल वर्कशॉप एंड सेवरल मशीन टू प्रोड्यूस गारमेंट्स फॉर द इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज। जो रेडीमेड गारमेंट होते हैं ये आपके फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप में आपके बनाई जाती है, यानी कि स्मॉल यूनिट में आपका वर्क डिवाइड होता है और इसके लिए सेवरल मशीन जो है वो आपकी इन्वॉल्व होती है, जो इंडियन मार्केट और बाहर के देशों के लिए कपड़े आपके बनाती है। पीपल वर्क इन दी गारमेंट फैक्ट्रीज, और बहुत से लोग जो है इन गारमेंट फैक्ट्रीज में जो है काम करते हैं, ये उनको जो है आपका कार्य जो है आपकी जॉब जो है प्रोवाइड करती है। Some workers in garment factories and other factories are employed only when work is needed to be done. कुछ आपकी ऐसी गारमेंट फैक्ट्री होती है जिसमें कुछ वर्कर आपके जो है शामिल होते हैं, वो उसी समय बुलाए जाते हैं जब जो है कार्य करना होता है, यानी कि जब कार्य ज्यादा होता है तभी उनको जो है बुलाया जाता है, जब कार्य नहीं होता तो उनको नहीं बुलाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, टेलर्स आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट लार्ज ऑर्डर। जैसे कि टेलर है जिसको रेडीमेड क्लॉथ को तैयार करना है तो उनको तभी बुलाया जाता है जब बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो आपका आता है, और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, या हमारे देश में कुछ पर्टिकुलर सीजन आते हैं जिसमें ज्यादा काम रेडीमेड क्लॉथ का होता है, तो उसी टाइम आपका जो है टेलर्स को जो है बुलाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में जो है प्राइवेट जो स्कूल्स है उनका प्रचलन ज्यादा है, तो प्राइवेट स्कूल में आपकी जो है अलग अलग स्कूल में अलग अलग प्रकार की यूनिफॉर्म लगती है। तो यूनिफॉर्म का काम जो है साल में 2 बार आपका ज्यादा चलता है, वन इन समर सीजन, सेकंड इज इन विंटर सीजन। व्हेन यू गेट एंटर ड्यूरिंग द समर सीजन इन द स्कूल, सो यू नीड द यूनिफॉर्म, यू नीड द ड्रेस। तो आपका कार्य जो है उस टाइम बहुत
हाई लेवल पर चलता है, बहुत हाई ऑर्डर आपका होता है, तो उस टाइम बहुत से वर्कर जो है आपके एम्प्लॉयड किए जाते हैं एक एम्प्लॉय के द्वारा। उसके अतिरिक्त जो है आपका विंटर में भी आपका यही सेम कंडीशन आपकी होती है, लेकिन इसके बाद जब काम नहीं होता है तो वो आपके काम पे नहीं बुलाए जाते हैं, और शायद इसी को हम जो है कैजुअल बेसिस जॉब कहते हैं, टेम्पोरेरी जॉब कहते हैं। दे आर आस्क्ड टू लीव व्हेन देयर इज नो वर्क, यानी कि जब काम नहीं होता है तो क्या होता है, उनको जो है लीव करने के लिए बोल दिया जाता है, यानी कि उनके पास काम नहीं होता। इन सम केसेस इफ वर्कर कंप्लेन्स अबाउट पे और वर्किंग कंडीशन, हो सकता है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें वर्कर जो है पे के लिए या वर्किंग कंडीशन के लिए कंप्लेंट कर सके, लेकिन दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑन कैजुअल बेसिस। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनको बाद में भी आगे भी जॉब जो है चाहिए होती है, तो इसलिए जब आपको जो है कुछ सर्टेन टाइम में ही काम करना होता है और उसके बाद आपको जो है उस जॉब से निकाल दिया जाता है, सो सच टाइप्स ऑफ द जॉब, सच टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज कैजुअल बेसिस और टेम्पोरेरी, एंड सच एम्प्लॉइज आर रेफर टू एज कैजुअल वर्कर। इन वर्कर को हम कैजुअल वर्कर और टेम्पोरेरी वर्कर के नाम से जानते हैं। दे गेट वेजेज ऑन डेली बेसिस फॉर द डेज, जितने दिन वो काम करते हैं उतने ही दिन का वेतन उनको मिलता है, एंड एक्स्ट्रा आवर्स दे हैव वर्क, और अगर वो टाइम से, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा 8 आवर्स का टाइम आपका फिक्स किया है, अगर 8 आवर्स से ज्यादा वो काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम मिलता है और उस ओवर टाइम पे उनको पैसे मिलते हैं। जॉब ऑन कैजुअल वर्कर्स आर नीदर रेगुलर नॉर परमानेंट, जो कैजुअल जो वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब ना रेगुलर होती है और ना ही परमानेंट होती है, एंड देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, और उनकी जॉब की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, उनको किसी भी दिन कह दिया जाता है कि वो कल से काम पे ना आए, यानी कि वो आपकी टेम्पोरेरी जॉब होती है। थर्ड इज अवर डेली वेज लेबरर्स, ये आपके मजदूर हैं जिनको जो काम जो मिलता है वो डेली वेजेस के अकॉर्डिंग मिलता है, प्रतिदिन का काम मिलता है। कैसे? डेली वेज लेबर्स डू नॉट हैव परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, दे हैव टू वेट एवरी डे एट अ फिक्स प्लेस वेयर पीपल कम एंड हायर देम ऑन डेली वेजेस बेसिस, यानी कि डेली वेजेस जो लेबर होते हैं उनका काम भी परमानेंट नहीं होता है। दे हैव टू वेट एवरी डे एट अ फिक्स प्लेस, बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनके लिए कुछ स्थान जो है फिक्स होते हैं जिसको लेबर चौक के नाम से जानते हैं, उस लेबर चौक पे वो इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, लोग वहां पे आते हैं, उनके उनको हायर करते हैं ऑन दी डेली वेजेस, यानी कि हर एक दिन की मजदूरी के अकॉर्डिंग, जितने दिन का उनको काम होता है उतने दिन का जो है उनको जो है उनकी मजदूरी जो है, उनका डेली वेज जो है वो दे दिया जाता है। थाउजेंड ऑफ सच कैजुअल वर्कर इन सिटीज वर्क एज हेल्पर टू मैसन, जो हजारों ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस बेस पे काम करते हैं और वो बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं, एंड दे वर्क एज ए हेल्पर, वो एज ए हेल्पर के रूप में काम करते हैं टू मैसन, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पे वो ज्यादा काम करते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, मैसन जो होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, उनके हेल्पर के रूप में डेली वेजेस वर्कर जो है काम करते हैं। दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट, वो कंस्ट्रक्शन साइट को खोदते हैं। लोड एंड अनलोड ट्रक इन मार्केट, मार्केट में ट्रक की लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं। डिग पाइपलाइंस, पाइपलाइन को खोदने का काम करते हैं। एंड ले डाउन दी टेलीफोन केबल्स, और टेलीफोन केबल्स को बिछाने का काम करते हैं। बिल्ड रोड, और सड़कें बनाने का काम डेली वेजेस जो है करते हैं, उनको हर दिन की मजदूरी दी जाती है। एज दिस इज नॉट ए रेगुलर एंड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि डेली वेजेस जो लेबर है ये रेगुलर और परमानेंट काम नहीं है, दे हैव टू स्ट्रगल टू सर्वाइव इन केस ऑफ इलनेस और लैक ऑफ वर्क, यानी कि अगर उनके पास काम की कमी होती है या बीमार वो होते हैं तो उनको जो है अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। एज दे डू नॉट गेट एनी अर्निंग देन, क्योंकि उनके पास जो है दूसरा कमाने का कोई भी साधन नहीं होता है। पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट एक्सेप्ट दिस, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग होते हैं शहरों में जो गलियों में काम करते हैं। कैसे? देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरिया, हमारे देश में तकरीबन जो है 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, गली गली घूमते हैं और अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। इसके अतिरिक्त ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड साइकिल रिक्शा पुलर प्रोवाइड
कम्यूटिंग सर्विसेज। इसके अतिरिक्त जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर होते हैं या जो रिक्शा पुलिंग जो आपके होते हैं, वो क्या करते हैं, दे कम्यूटिंग, कम्यूटिंग मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो जो है लोगों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं और इस प्रकार से अपनी लिविंग को कमाते हैं, अपनी लाइवलीहुड को कमाते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में और क्या होते हैं आपके, बार्बर्स, कोबलर्स, साइकिल रिपेयर्स ऑफन प्रोवाइड देयर सर्विसेज विद अ स्मॉल टूल बॉक्स ऑन द स्ट्रीट। गलियों में ये लोग भी होते हैं, जैसे कि बार्बर, नाई, कोबलर जो जूतों की मरम्मत करता है, रिपेयर दी शूज एंड साइकिल रिपेयर के काम करने वाले होते हैं। वो अपने साथ एक छोटा सा टूल रखते हैं और उसी के द्वारा जो है गलियों में बैठकर जो है काम करते हैं। वी फाइंड मैनी स्ट्रीट वेंडर सेलिंग डिफरेंट गुड्स ऑन द स्ट्रीट। हम जो है गलियों में अलग अलग स्ट्रीट वेंडर्स को देखते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होंगे जो वेजिटेबल बेच रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स बेचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डेली हाउस नीडेड की वस्तुओं को बेचते हैं, जैसे कि मग है आपका, बास्केट है आपका, आपकी बकेट्स हैं, इस तरह के, जैसे कि आपका पोछे का सामान है, आपका झाड़ू है, आपकी ब्रूम है आपका, तो इस प्रकार के सामान को जो है वो बेचते हैं। यानी कि हाउस होल्ड की जो चीजें हैं वो वेंडर्स के द्वारा बेची जाती है। दीज पीपल वर्क ऑन देयर ओन, ये लोग जो है अपने आप अपना काम करते हैं। एंड आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, यानी कि इनको जो है दूसरे लोग जो है काम नहीं देते हैं, ये अपना ही काम करते हैं। दे हैव टू ऑर्गेनाइज वर्क फॉर देमसेल्फ, इसीलिए उनको अपना कार्य जो है अपने आप व्यवस्थित करना होता है। वेंडर्स सेल थिंग लाइक वेजिटेबल, प्लास्टिक गुड, फ्लावर्स, न्यूज़पेपर और ईटेबल्स ऑन अ कार्ट और अ बाइसिकल और इन स्मॉल शॉप। वेंडर जो होते हैं वो जो है वेजिटेबल, सब्जियां बेचने का काम करते हैं, प्लास्टिक गुड, प्लास्टिक की वस्तुएं बेचने का काम करते हैं, फ्लावर्स बेचने का काम करते हैं, न्यूज़पेपर बेचने का कार्य करते हैं और जो कुछ खाने की वस्तुएं होती हैं उनको बेचने का काम करते हैं। और ये जो सारा कार्य वो करते हैं वो या तो जो है एक उनकी कार्ट होती है, वो स्पेशल गाड़ी होती है, छकड़ा जिसको आप बोलते हैं, उससे काम करते हैं, या बाइसिकल पे काम करते हैं, या स्मॉल शॉप, रोड साइड में एक जगह पर उनकी टेम्पोरेरी शॉप होती है जहाँ पे वो सुबह के टाइम बैठते हैं और शाम को वहां से उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है स्ट्रीट वेंडर्स जो आपके काम करते हैं। देयर शॉप आर जनरली टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर, उनकी जो शॉप होती है वो टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर की होती है, यानी कि टेम्पोरेरी होती है, फिक्स नहीं होती, पक्की दुकान उनकी नहीं होती है। समटाइम जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस। आपने देखा हो कई बार उनकी दुकानों के आसपास जो है ऐसे ही बोर्ड जो हैं और ऐसे ही पेपर जो हैं वो पड़े होते हैं, डिस्कार्डेड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। और मे बी कैनवस सीट्स हंग अप ऑन ए फ्यू पोल्स, या कई बार वो अपनी दुकान कैसे करते हैं, एक कैनवस सीट लगा देते हैं जिससे जो है उनकी दुकान जो है वो बन जाती है। दे में ऑल्सो यूज देयर ओन कार्ड्स, कई बार वो अपनी कार्ड्स को यूज करते हैं, यानी कि एक गाड़ी होती है 4 पहियों वाली जो वो बनाते हैं, जैसे कि बेंगल्स वाले को आपने देखा होगा वो 4 पहियों की गाड़ी पे आता है, ठीक है। जैसे ही ऐसे ही आपने फ्रूट्स वाले को बेचा होगा, वो 4 आपका जो है टायर्स होते हैं, 4 व्हीलर जो होते हैं, उसके उसके ऊपर जो है एक आपके जो है एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कार्ट बोलते हैं। सिंपली अ प्लास्टिक सीट स्प्रेड ऑन दी पेमेंट, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक सीट जो है वो आपकी लगी होती है। इसके अतिरिक्त जो सड़कों के ऊपर बैठकर जो है पेमेंट के ऊपर, पेमेंट क्या होती है, जब आपकी सड़कें होती है तो उस पर जो है जो पैदल यात्री होते हैं उसके जाने का स्थान होता है, उसको हम पेमेंट बोलते हैं। तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, उस पेमेंट के ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछाकर वो अपनी वस्तुओं को जो है बेचते हैं। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप एट एनी टाइम बाय द पुलिस, और कई बार पुलिस आकर उनको वहां से उठा देती है, किसी भी टाइम उनको अपनी दुकान को वहां से उठाना पड़ता है, इसलिए उनकी जो शॉप होती है वो आपकी जो है टेम्पररी होती है। दे हैव नो सिक्योरिटी, यानी कि उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है कि वो उनकी शॉप वहीं पे रहेगी। There are certain parts of the city where hawkers are not allowed to enter, कई बार जो हाकर्स होते हैं, हाकर्स कौन होते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल को बेचते हैं, उनको जो है कई बार जो है शहर के लोग जो है अपनी गलियों के अंदर नहीं आने देते हैं। इस प्रकार के कुछ आपके ऐसे शहरों में पार्ट्स बने हुए हैं जहाँ पे हाकर्स को जो है फल और सब्जियां बेचना अलाउड नहीं होता है। पीपल वर्किंग ऑन स्ट्रीट आर ऑफन फोर्स टू सेट अप देयर होम्स ऑन द स्ट्रीट इटसेल्फ,
कई बार ये लोग जो है इतने गरीब होते हैं कि इनको जो अपना घर है वो गलियों के ऊपर ही बनाना पड़ता है, यानी कि गलियों की एक साइड में जो है ये लोग अपना घर जो है बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यमुना एनक्लेव के आसपास का जो रीजन्स है आपका, वहाँ पे जो है कुछ वेंडर्स बैठे हुए हैं आपके, जो आपकी डेली वेजेस वस्तुओं को जो है बेचते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि जैसे कप हैं, प्लेट्स हैं, आपकी मग्स हैं आपके, उनको वो बेचते हैं। तो उन्होंने अपना छोटा सा जो है टेम्परेरी जो कैनवस डाल के जो अपना छोटा सा घर वहीं पे बना लिया है। तो वो कई बार अपना जो है गली में ही घर जो है बना लेने के लिए बाधित होते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं होती है, उनके पास अपनी जमीन नहीं होती, तो इसलिए जो है गलियों में ही वो जो है अपना घर बना लेते हैं। वेयर दे लीव देयर बिलोंगिंग ड्यूरिंग द डे, जहाँ पे वो जो है जो उनकी बिलोंगिंग होती है, यानी कि जो उनकी आवश्यकता का सामान होता है, वो दिन के समय में ऐसे ही पड़ा रहता है। एंड कुक एंड स्लीप इन द नाइट, वो रात को उस टेंट में जाते हैं, उस टेम्पोरेरी घर में जाते हैं, अपना खाना बनाते हैं और खाकर सो जाते हैं। नाउ चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स स्ट्रीट वेंडर। अब स्ट्रीट वेंडर जो है, कई लोग जो है इनको अपनी गलियों में नहीं घुसने देते हैं, या कई बार पुलिस आकर इनकी दुकानों को हटा देती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड, हमको अपना एटीट्यूड बदल लेना चाहिए। क्यों? हैव ए लुक हियर। स्ट्रीट वेंडिंग was till recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, गलियों के ऊपर जो है प्लास्टिक सीट को बिछाकर अपनी चीजों को बेचते हैं, या पेमेंट के ऊपर प्लास्टिक सीट बिछाकर अपनी चीजों को बेचते हैं। तो कई बार जो स्ट्रीट वेंडिंग है, ये अब तक क्या समझा जा रहा था, एक हिंड्रेंस समझी जा रही थी, एक ऑब्स्ट्रक्शन समझी जा रही थी, एक रुकावट समझी जाती थी ट्रैफिक में और पीपल वॉकिंग में। यानी कि पेमेंट का जो एरिया होता है, पेमेंट जो होता है वो पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए स्थान होता है, और अगर गलियां होती है तो उसमें ट्रैफिक आपका गुजरता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी जो है लोगों को समस्या आती है, तो इसलिए जो है ये आपकी एक रुकावट मानी जाती है। विद द एफर्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी संस्थाओं ने इसके ऊपर कार्य किया है। इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए जनरल बेनिफिट एंड एज ए राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। यानी कि जो वेंडर होते हैं वो डेली नीडेड की वस्तुओं को बेचते हैं, तो बहुत से घरों को इनका फायदा होता है। तो इसलिए जो है अब उनका काम जो है अच्छा समझा जाने लगा है। और दूसरा, हर एक व्यक्ति को जो है अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका कमाने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं। तो इसीलिए जो है अब हम उनको रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैंड स्ट्रीट वेंडर। पहले जो है स्ट्रीट वेंडर जो है उनको बैन कर दिया था कि सड़कों के ऊपर कोई दुकान नहीं लगाएगा, कोई गलियों में नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है अब ये रूल जो है वो मॉडिफाई होने चाहिए, उसमें सुधार आना चाहिए, सो दैट दे हैव ए प्लेस टू वर्क। उनको एक फिक्स स्थान शहरों में दिया जाना चाहिए जहाँ पे वो जो है अपनी दुकानों को लगा सकें, सो दैट देयर इज ऑल्सो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल। और दूसरा, जो ट्रैफिक है और जो पीपल है वो भी आराम से अपना आ जा सके। जब इनको एक स्थान दे दिया जाएगा तो ये जो लोग हैं वहां पे अपनी शॉप्स लगाएंगे, तो लोगों को किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हॉकिंग जोन हैव बीन सजेस्टेड इन टाउन्स एंड सिटी। तो इसीलिए जो है शहरों में जो है हॉकिंग जोन जो है आपके जो है वो सजेस्टेड किए गए हैं कि पर्टिकुलर एरिया पे आपका हॉकिंग जोन होना चाहिए। जैसे कि अगर पानीपत की बात अगर आप करें, तो पानीपत में आपका जो है आपका एक एरिया है जहाँ पे आपका हॉकिंग जोन बना हुआ है, शायद जाटल रोड है आपका, वहाँ पे जो है बहुत सस्ते दामों पर वस्तुएं मिलती हैं, तो वो एक तरह का हॉकिंग जोन आपका है। इट हैज ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर, मोबाइल का मतलब होता है बेटा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो वस्तु आपकी गति में होती है, स्पीड में होती है, उसको हम मोबाइल कहते हैं। तो जो मोबाइल वेंडर है, यानी कि जो वेंडर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली, उनको जो है फ्रीली घूमने देना चाहिए, ताकि जो है वो लोगों को वो अपनी वस्तुएं बेच सकें। हाकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमेटीज, हाकर भी जो है उनकी भी कमेटी बननी चाहिए, वो भी कमेटीज का एक पार्ट है। दैट आर सेटअप टू टेक दीज, ताकि वो अपना जो है एक सेटअप बना सकें, एंड अदर डिसीजन रिलेटेड टू देम, और अपने से रिलेटेड जो भी उनके डिसीजन है वो ले सके। यानी कि इनकी कमेटी जो है, इनके ग्रुप जो है वो बनाए जाने चाहिए। नाउ बिजनेस पर्सन इन दी मार्केट, एक टर्म आई थी बेटा आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड।
तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? हैव ए लुक हियर, देयर आर सेवरल बिजनेस पर्सन हैविंग देयर ओन स्मॉल और लार्ज शॉप और बिजनेसेस इन द मार्केट ऑफ ए सिटी। शहर में जब आप जाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी छोटी दुकानें होती हैं या बड़ी दुकानें होती हैं या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं। छोटी दुकानें जैसे कि आपकी बुक्स की है आपकी, या छोटी मोटी वस्तुओं की है। लार्ज शॉप भी आपकी होती है, मल्टी स्टोरीड शॉप आपकी होती है, और बिजनेस हाउसेज भी आपके होते हैं जैसे कि मॉल्स है आपका, या सुविधा वगैरह जैसे आपकी है। तो ये बड़े बड़े बिजनेस हाउस भी, बड़ी बड़ी मार्केट भी आपकी होती हैं। दे आर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार के कार्यों में जो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। दे एम्प्लॉय नंबर ऑफ अदर वर्कर, वो दूसरे व्यक्तियों को भी काम देते हैं एज सुपरवाइजर एंड हेल्पर, सुपरवाइजर के रूप में और हेल्पर के रूप में। दीज आर परमानेंट शॉप्स, इनकी जो स्मॉल लार्ज और बिजनेस मार्केट्स होती हैं ये आपकी जो परमानेंट शॉप होती हैं। दैट आर गिवन ए लाइसेंस टू डू बिजनेस, जिनको बिजनेस करने के लिए एक लाइसेंस दिया जाता है बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइड ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू रिमेन क्लोज। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी डिसाइड करती है कि वीक के कौन से दिन जो आपकी जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। जैसे अगर हम अपने एरिया में देखें, पानीपत का रीजन देखें, तो पानीपत में जो है आपकी संडे को मार्केट क्लोज रहती है। इसी प्रकार से अगर आप यमुनानगर में जाएंगे तो यमुनानगर में आपकी मंडे को मार्केट क्लोज रहती है। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है कि कब आपकी जो मार्केट जो है वो क्लोज रहनी है। दी मार्केट है शोरूम, मार्केट में क्या होता है आपके शोरूम्स होते हैं। शॉप्स सेलिंग गुड्स, वस्तुएं बेचने वाली शॉप्स होती हैं। स्मॉल ऑफिसेज एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंक, कुरियर सर्विस एंड अदर, यानी कि तकरीबन हर एक प्रकार की सुख सुविधा की शॉप जो है वो शहरों में आपकी मार्केट प्लेस पर आपकी होती हैं। इसके अतिरिक्त ए सिटी ऑल्सो हैज प्रोफेशनल्स, जो शहर होते हैं उसमें आपके प्रोफेशनल्स भी होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, डेंटिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर एटसेट्रा। यानी कि आप शहरों में आप देखेंगे आपको जो है डॉक्टर, लॉयर्स, वकील, डेंटिस्ट, दांतों को चेक करने वाले चिकित्सक, फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत से जो है आपके प्रोफेशनल लोग भी आपके जो हैं होते हैं, जो आपको प्रोफेशनली जो है आपको सजेशंस देते हैं या प्रोफेशनली वर्क करते हैं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज दी कॉल सेंटर्स। आजकल आपका ट्रेंड में आया है कॉल सेंटर्स। जैसे कि आपके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं तो सभी बिजनेस हाउसेज के आजकल आपके कॉल सेंटर होते हैं। अगर आपको किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से कोई भी समस्या आती है तो कॉल सेंटर के द्वारा जो है आपकी समस्या को डायग्नोस किया जाता है। A call center is a centralized office that deals with problems and questions that consumer or customer have। यानी कि कॉल सेंटर क्या होता है? एक सेंट्रलाइज, यानी कि जैसे पानीपत का जो रीजन है वहां का आपका एक ही कॉल सेंटर होगा और वहां पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं का निवारण करा सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो आपके जो है शॉर्ट आउट किए जाते हैं। रिगार्डिंग गुड परचेज एंड सर्विसेज, यानी कि आप कैसी वस्तुएं परचेज करना चाहते हैं, कौन सी सेवाएं लेना चाहते हैं, उस प्रकार अगर आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है, तो आप कॉल सेंटर पे कॉल करके अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जनरली सेटअप अ लार्ज रूम विद वर्क स्टेशन दैट इंक्लूड अ कंप्यूटर, ए टेलीफोन सेट एंड सुपरवाइजर स्टेशन। यानी कि जो कॉल सेंटर होते हैं वो बहुत बड़ा रूम होता है जहाँ पे आपका कंप्यूटर, टेलीफोन सेटअप्स और आपके सुपरवाइजर होते हैं जो लोगों की जो है अलग अलग समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द टाइप ऑफ द कॉल सेंटर। तो आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज होती है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी वस्तु से रिलेटेड, तो कॉल सेंटर के थ्रू जो है आपका उस समस्या का निवारण किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो उस पर एक टोल फ्री नंबर होता है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसपे आप बात कर सकते हैं, तो वो कॉल सेंटर का नंबर आपका होता है। इंडिया हैज बिकम ए मेजर सेंटर, इंडिया में आजकल बहुत से कॉल सेंटर आपके डेवलप किए गए हैं, नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनी बट ऑल्सो फॉरेन कंपनीज टू सेटअप देयर कॉल सेंटर। यानी कि इंडिया में इंडियन कंपनी तो आपके कॉल सेंटर को डेवलप कर ही रही है, साथ ही साथ जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी अपने सेंटर्स को डेवलप कर रही है। यानी कि इंडिया में आप देखेंगे कि आपको एप्पल के कॉल सेंटर भी मिलेंगे, एप्पल आईफोन के भी मिलेंगे, सैमसंग के भी आपको मिलेंगे,
MI के भी आपको मिलेंगे। ये सारी कंपनीज जो हैं, डेल हैं जैसे आपकी, ये सारी फॉरेन कंपनीज हैं, तो इनके कॉल सेंटर भी आपको इंडिया में मिलते हैं। These companies set up their call center in India as they can get people who can speak English and will work for lower wages. फोन कंपनी इंडिया में अपने कॉल सेंटर क्यों डेवलप कर रही है? क्योंकि वो जो है उनको इजीली जो है इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चे जो हैं मिल जाते हैं, एम्प्लॉयर मिल जाते हैं। दूसरा, वो लोअर वेजेस, अगर विदेशों से हम अपनी तुलना करें तो हम जो है सस्ते दामों पर कार्य करने के लिए एग्री हो जाते हैं। वर्किंग इन कॉल सेंटर इज ए न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉल सेंटर में जॉब करना एक नए प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है इन दी बिग सिटी, बड़े बड़े शहरों में। यानी कि बड़े बड़े शहरों में आजकल जो नवयुवक हैं या नवयुवतियां हैं, वो जो हैं आपके जो है कॉल सेंटर में काम करना पसंद करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, this is our chapter. In this chapter we have discussed about the different types of the livelihood, different types of the work in the urban area. We also discussed some people get opportunity of permanent employment, whereas other have to work on casual employment. We have also discussed there are people working on street or as daily wages laborer. They do not have a secure livelihood. Except this, we also discussed that the shops of the street vendor are temporary, whereas the shops and showroom in the market are permanent license. So both are self-employed livelihood. Working in call center is a new form of employment in the big city. Or in simple words, in this chapter, we discuss about the urban people and we discuss about the three types of the work that are our permanent employment, casual basis employment or temporary employment, and third is our self-employment. So dear student, this is our chapter. Thank you. Have a nice day. God bless you.